and I'm sure you would have studied this. So, let me start this chapter for you. Okay. Um, Let me share my screen also. Okay. If you're able to see my screen, just let me know. Yes, sir. Okay, wonderful. So let me quickly, touch upon this chapter. I'm sure you would have learned this, but still. So this chapter is for, it's called rational number. ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं. संख्या. ओके. So so simple thing is, like we have learned that 1, 2, 3, 4, if you keep on going, these are called natural numbers, और हिंदी में प्राकृत संख्याएं. If you add a zero to it, this becomes whole number या पूर्ण संख्या. And if you bring in this flavor also, meaning negative ones also, this whole set is called integers या पूर्णांक उसको बोलते हैं. Same way, when you say this or this or this is called fractions. But this only has positive numbers. So if you bring this flavor also, and I'm not going in any sequence, okay? I'm just being random. So on and so forth. So basically, the set of numbers which has the fractions with the negative and positive both, that is what is called rational numbers और परिमेय संख्याएं. ठीक है, मतलब ऐसे भिन्न जिसमें कि पॉजिटिव नंबर्स भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या या इंग्लिश में रैशनल नंबर्स. तो ये है, this is about the rational number. Now there are certain properties that we are trying to learn about them. So let's start with the whole numbers first and talk about a property called closure. क्लोजर, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समवृत्त. एक्चुअली क्या होता है कि हिंदी के वर्ड्स जो रहते हैं, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में, दे आर लिटिल क्रिप्टिक. ओके, मुझे भी याद नहीं, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो इसलिए मैं इसको नोट करके रखता हूँ हिंदी वाले वर्ड्स को. तो ये प्रॉपर्टी है कॉल्ड क्लोजर, और हिंदी में समवृत्त. अब क्या होता है ये प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट मीन? चलिए पर एक बार लेट्स लुक एट होल नंबर्स फर्स्ट. होल नंबर्स व्हेन वी से 0, 1, 2, 3, 4, मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ये हो गया आपका होल नंबर. तो व्हेन वी से क्लोजर, क्लोजर का मीनिंग होता है कि when we talk about these properties, right, we always talk with respect to the operations, plus, minus, sorry, minus, मतलब addition, subtraction, multiplication, division. इसके रेफरेंस में ही हम ये प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. 4 प्रॉपर्टीज दैट विल टॉक अबाउट. वन इज क्लोजर या समवृत्त हिंदी में, दूसरा कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमय नियम, तीसरा है एसोसिएटिविटी या हिंदी में बोलते हैं सहचारिता, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी. तो वी विल टॉक अबाउट दिस 4 प्रॉपर्टीज प्राइमरली. ओके, सो आई एम रिपीटिंग. क्लोजर या समवृत्त, दूसरा होता है कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमय, क्रम विनिमेयता, तीसरा होता है एसोसिएटिविटी या सहचारिता, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी. तो चलिए let's start with the first one. And again, all these 4 properties that we will talk about will be with respect to the mathematical operations, यानी जोड़ घटाओ गुना भाग
के रेफरेंस में बात करेंगे. So let's start with the first one, that is closer. Closer, yes, इसको हिंदी में कहा था समवृत्त. समवृत्त मतलब सर्कल को बोलते हैं वृत्त हिंदी में, राइट? तो समवृत्त मतलब इससे सर्कल होता है, ऐसे क्लोज हो जाता है ना, ऐसे you start from one point and then you close this. So samvrit, that is how it is, if you want to remember it that way. Okay. तो closer में closer का मतलब होता है कि when you do operation, any of the operation between two numbers and the outcome is the same type, that is where this property is called closer. और ये बोल सकते हैं कि this closes on this operation. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, then it will be more clear. Okay, let's look at now first the whole numbers. Okay, let's say 1 4 7. ठीक है, या 4 7 2. Let's talk about two numbers. Okay, मतलब दो numbers के रेफरेंस में बात करते हैं, and we'll always talk with respect to, as I said, the mathematical operation. Okay, so what this property closure means is, अभी हम लोग होल नंबर्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण संख्या. तो अगर आपने 4 + 7 किया, व्हाट इज द वैल्यू? 11. ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी होल नंबर है. तो what it means is, this property means is, if you are dealing with two whole numbers and doing an operation and the outcome is also whole number, मतलब आपने दो पूर्ण संख्या को जोड़ा और उसका रिजल्ट अगर पूर्ण संख्या है, तो we can say this whole numbers are whole numbers close on addition. मतलब पूर्ण संख्याएं जो है वो जोड़ने के क्रम में समवृद्ध होती हैं. सो अगेन सिंपल टर्म्स में, अगर दो होल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, उसको ऐड करते हैं और उसका आउटकम अगर होल नंबर ही है, तो दिस प्रॉपर्टी क्लोजेस ऑन एडिशन. सॉरी, होल नंबर क्लोजेस ऑन एडिशन. ओके, अगर अब देखिए, इफ यू चेंज दिस गेम, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ ऐसे. If you talk about subtraction, so if you deal with subtraction, okay, तो मतलब let's say 4 and 7. अब सेम नंबर को 4 - 7 किया तो क्या होता है? -3. So this is whole number, this is whole number, this is becoming an integer. ठीक है, तो whole numbers do not close on subtraction. मतलब इसको सिंपल तरीके से करते हैं कि अगर आपने कोई नंबर टाइप को के साथ आप डील कर रहे हैं, उसके साथ कोई ऑपरेशन किया आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो और अगर रिजल्ट जो है अगर सेम नंबर टाइप है, दैट मींस यू विल से दिस क्लोजेस ऑन दिस ऑपरेशन. तो यहाँ पे अगर होल नंबर से डील करें तो ये आपका इनपुट जो था होल नंबर था, आउटपुट आ गया आपका इंटीजर. तो दिस डजंट क्लोज. अब थोड़ा सा स्टोरी को ट्रेस करते हैं. तो अगर इंटीजर के साथ में अगर आप ये देखते, अगर ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगर लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो मी. ओके, कि अगर आप इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक जिसको बोलते हैं हिंदी में. हाँ, तो अगर आप 2 - 6 अगर करते हैं, -4
ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। 2 + 6 करते तो भी 8, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते 2 × 6 क्या होता है 12, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। मतलब if your input and output both are the same type, same number type, then this closes on that property. लेकिन अगर आप डिवाइड करते हैं, see again I'm giving two numbers example. What it means is you pick any number of that type and do the operation. If the output is of the same type, so you can say that this number type closes on this operation. That is what is the closure property. अगर यहीं पे आप डिवीजन करते, ठीक है, 2/6 क्या बन जाता? 1/3. This is a fraction, this is integer, this is integer. So it doesn't close on division. ये अभी हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं सिर्फ, where we are talking about positive numbers and negative numbers. Okay, so I'm repeating myself. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, कोई यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की भी हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू द 4 ऑपरेशंस। समृद्ध हो या आपका या क्लोजर हो या कम्यूटेटिविटी हो या सहचारित क्रम विनिमय नियम हो, एसोसिएटिविटी हो या सहचारिता हो या डिस्ट्रीब्यूटिविटी या वितरकता हो। मतलब ये जो जो 4 प्रॉपर्टीज है, लेट मी नॉट यूज द हिंदी वर्ड्स फॉर नाउ। आप लोग जो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी देख रहे होंगे एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन विल टॉक अबाउट द 4 प्रॉपर्टीज। क्लोजर की बात करेंगे, कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे, ओके, एसोसिएटिविटी की बात करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। हर एक प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग वी आर टॉकिंग विथ रेस्पेक्ट टू 4 ऑपरेशंस। ठीक है, तो सिंपल थंब रूल है कि अगर आप एक ही नंबर टाइप के बीच में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका आउटकम अगर सेम नंबर टाइप है, तो दैट वी से कि वो दैट क्लोजेस ऑन दैट प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ इंटीजर्स की बात की थी। तो अगर अब सिंपल देखेंगे अगर टेबल, अगर कोई दो इंटीजर को अगर प्लस, दो इंटीजर है, इसको इसको प्लस कर रहे हैं, आउटकम इंटीजर है, तो दिस इंटीजर्स क्लोज ऑन एडिशन ऐसा बोलेंगे। या जो पूर्णांक है वो समवृत्त है एडिशन के लिए, जोड़ के क्रम में। अगर दो इंटीजर को, कोई भी दो इंटीजर, यहाँ पे मैं 1 3 ले रहा हूँ, कल को आप 1 और -4 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 और -6 भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। एनी टू नंबर इफ यू सब्ट्रैक्ट and the outcome is integer, this is also integer, तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि this closes on this property. Others, you are with me, right? Yes, sir. Okay, तो it closes on that property. उसी तरह से if you do 1 × 3, outcome is 3, so integer, outcome is also integer, so multiplication is also fine. यहीं पे प्रॉब्लम कैच ये है, if you do division and then the outcome is 1/3, so input types are integer, outcome is a fraction.
तो ये दिस इज नॉट क्लोजिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो हमने इंटीजर की बात की। नाउ लेट्स लुक एट रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 1/9 माइनस में 2/7, 14/82, कुछ भी, राइट? So all types of fractions with positive and negative values, right? That is what is rational numbers. Now look at rational numbers. अगर आपने मान लिया जाए दो रैशनल नंबर लिया, 1/3 और 2/7, इसको सम करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इट विल बी अ रैशनल नंबर. So we will say it closes, the rational number also closes on addition. यानी कि परिमेय संख्या भी समवृद्ध होती है एडिशन के लिए, यस, जोड़ के लिए. If you do the same thing with the same number and do subtraction, कोई फ्रैक्शन आएगा. ओके, चलिए दिव्यांश भी ज्वाइन कर गए. हेलो दिव्यांश. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good evening. So Divyansh, just to do a quick recap, we have started 8th grade का math first chapter, which is rational number. ठीक है? और rational number से आप जानते होंगे, it is nothing but a fraction. Any fractional number with positive or negative value. ठीक है? That is what is rational number. Correct? तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर में we are trying to look at the properties of rational number. अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट द ऑपरेशंस, properties against the operations, okay? Plus, minus, division, multiplication, division, okay? There are four types of properties that we will talk about, that I have just done a quick recap. They are called closure, या हिंदी में बोलते हैं समवृत्त. दूसरा बोलते हैं कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमेयता. we'll go through them one by one. अभी हम लोग क्लोजर की बात कर रहे हैं, ठीक है? There are four properties: closure, commutativity, associativity and distributivity. ठीक है? And all these four properties we talk with respect to these operations: plus, minus, division, multiplication. मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जो बोलते हैं, ठीक है? तो so far it's okay, Divyansh and others. आप लोग ठीक हो अभी तक? Yes, sir. ओके. Yes, तो हम sir. लोग वी हैव स्टार्टेड विथ क्लोजर. क्लोजर मतलब अगेन जो भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे वी विल टॉक अगेंस्ट दीज ऑपरेशंस. ठीक है? ठीक है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो ये समृद्ध होता है, इसका मतलब किसी इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर इफ यू आर डीलिंग विथ वन नंबर टाइप, दो नंबर्स लेके आप उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसका आउटकम अगर सेम नंबर टाइप है, देन वी से कि डिस्क्लोजर ऑन दिस प्रॉपर्टी. ठीक है? मतलब अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे दो जो अंडे मैंने डाले थे, अंडों की जगह पे मैं जो है डालता हूँ आपके नंबर्स को. ठीक है? और देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है. तो मान लिया जाए यहाँ पे एक नंबर कुछ देते हैं 2/7 और 1/8. एक्सक्यूज मी. और ये तीसरे अंडे को भी रिप्लेस कर देते हैं. तो इसको ऐड करने में कुछ तो होगा, राइट? एक कुछ फ्रैक्शन नंबर ही आएगा. ओके. तो ऑलराइट, चलिए. तो अभी जो भी पढ़ाई अभी तक हुई है आप उसको एक बार पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो उससे क्लियर होगा. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स. ये हिंदी में परिमेय संख्या, जिसके आपने पहले पढ़ा होगा, जिसका हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है. परिमेय संख्या या रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन
फ्रैक्शन नंबर जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आप एक अभी तक जो वीडियो हुआ उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि अभी कितना ध्यान रखिए, वीडियो बाद में देख लेंगे। रैशनल नंबर मतलब वो सभी फ्रैक्शनल नंबर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। मैंने 1/7 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर। तो क्लोजर के बारे में मैं बोल रहा था कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, उसके साथ में आप ये ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसका आउटकम अगर सेम नंबर टाइप होता है। अब देखिए, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है, हमने पहले सीखा है, हमने भी पहले किया होगा खुद से। इसको जब भी आप करेंगे ऑपरेशंस के साथ में, तो जो भी वैल्यू आएगा कुछ तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। और मान लिया जाए x/y आया, ठीक है, अभी मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। When you do this operation and the outcome, basically the input type and the output type are both rational numbers, तो हम बोलते हैं कि this closes on this property। प्लस किया तो भी वही हो रहा है, माइनस किया तो भी होगा, कुछ फ्रैक्शन से आएंगे, हो सकता है नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, जो भी है दोनों ही रैशनल नंबर है। तो आपका इनपुट टाइप और आउटपुट आफ्टर ऑपरेशन, इफ दे आर सेम टाइप, देन यू विल से कि रैशनल नंबर क्लोजेस ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखिए इसी नंबर्स पे 2/7 और 1/8 जो हम अभी कर रहे हैं, तो प्लस माइनस में हमने देखा कि आउटपुट होगा जो सेम ही, रैशनल नंबर आउटकम भी रैशनल नंबर होगा, प्लस माइनस दोनों केस में। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब तक मामला ठीक रहेगा, ठीक है। इसको 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 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2/7 56 हो जाता है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्लोज ऑन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आप डिवीजन की बात करते हैं तब क्या होगा, 2/7 डिवाइड बाय 1/8 क्या होता है, ये भी आपका कोई भी नंबर लेंगे। सी हियर आई एम गिविंग वन एग्जांपल, लेकिन हियर यू हैव टू थिंक कि कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, कुछ भी, मतलब इवन जीरो भी, अगर 2/7 इंटू 0/8 कर दिया आपने, या इंटू 0 कर दिया, तो जो आउटकम होगा, तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि जो भी बच्चे लेट से अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले की वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को ये बोलूंगा कि पहले जो पढ़ाई हो चुकी है ये वीडियो आप देख लेंगे, ताकि आपका रिकैप हो जाए। अभी हम लोग जो है 8th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, विच इज रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्या। हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस प्रॉपर्टी क्लोजर, है ना, इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी फ्रैक्शन, कुछ भी फ्रैक्शन नंबर हो, ठीक है, इसका एडिशन जो है हमेशा एक कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, ठीक है, जो भी होता है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसका कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन इसका एडिशन मतलब ऐड करने पर फ्रैक्शन नंबर ही आता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं या परिमेय संख्याएं समवृद्ध होती है, मतलब विथ विथ एडिशन। वही आप माइनस भी करते हैं तो भी कोई फ्रैक्शन नंबर ही आएगा, अगर होल नंबर भी आता है तो दैट इज आल्सो, अगर दो आता है, लेट्स से आंसर इज 2, लेट्स अज्यूम, तो दो को भी हम बोल सकते हैं 2/1, तो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो मतलब टाइप सेम ही है, तो दिक्कत नहीं है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक व्हाट इट मींस इन समरी इज कि अगर दो फ्रैक्शंस या दो रैशनल नंबर्स, है ना, या परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं
हो, अगर कोई भी दो नंबर ले रहा हूं मैं, इसको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत नहीं इन द सेंस दिस दिस क्लोजेस ऑन दिस दिस नो ऑपरेशंस। मतलब इनपुट आपका रैशनल नंबर है तो आउटपुट भी कुछ रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है, रैशनल नंबर ही आता है। लेट्स आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। ऐड करते वक्त, सब्ट्रैक्ट करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त तब कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज योर इनपुट टाइप एंड द आउटपुट आर द सेम। अगर डिवाइड करते, अगर कोई भी दो नंबर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या आउटकम हमारा रैशनल नंबर ही होता? अगर हम दो रैशनल नंबर लेते अगर इनपुट में और उसको डिवाइड करते एक को दूसरे से, तो हमारा आउटपुट भी रैशनल नंबर होता? मे बी, मे नॉट बी। एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। 1/6 डिवाइडेड बाई 2/9 क्या होता है? डिवाइड बाय कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये से पलट जाता है, राइट? ये 9/2 हो जाता है। क्या होता है? 9/12 हो गया। अभी तक तो रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 2/5 डिवाइड बाय 3/7 माइनस में चलिए ऐसा करता है तो क्या होता है कि ये जो है ये हो जाता है, आपको पलट जाता है, ऐसे 7/3 बन जाता है ना ऐसा। तो ये दिस इज -14/15। अभी तक रैशनल नंबर है। कहानी तब बदल जाती है व्हेन यू से 1/6 डिवाइडेड बाय 0, दिस इज इन्फिनिटी। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी या टू रैशनल नंबर्स क्लोज ऑन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट नॉट ऑन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में क्यों क्लोज होता है? अब देखिए, आप 1/6 मल्टीप्लाई बाय ऐसा कुछ नंबर कर देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? 0/6, ठीक है। 0/6 इज ऑल्सो 0 या 0/1, कुछ भी लिखिए, दिस इज स्टिल अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसी का फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाइए। मतलब क्या हो गया इसका? इसी का दिस इज रैशनल नंबर, राइट? तो बेसिकली अगर 0 आ रहा है फ्रैक्शन में, दैट इज ओके। डिवीजन बाय 0 नहीं आना चाहिए। डिवीजन बाय 0 आया तो दैट इज बिकम्स इन्फिनिटी, अनंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो रैशनल नंबर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा है कि जो, देखिए, पहला प्रॉपर्टी में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी मोर एक्सप्लिसिट। अगले प्रॉपर्टीज में आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, वी टॉक विथ रिस्पेक्ट टू द फोर ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और थंब रूल ये है कि आपका जो इनपुट टाइप है, जो जो नंबर्स को आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन करने के बाद अगर उसका आउटपुट टाइप भी सेम ही है तो हम बोलते हैं कि इट क्लोजेस ऑन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने रैशनल नंबर्स लिए, उसको ऐड किया, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड किया, आउटकम रैशनल नंबर है, तो इट क्लोजेस ऑन एडिशन। यानी कि हिंदी में बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं जोड़ने में समृद्ध होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर नेगेटिव नंबर्स लेंगे, सॉरी, सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आप घटाएंगे तो जो आउटकम है वो परिमेय संख्या होगी या रैशनल नंबर होगा, तो बोलते हैं कि इट क्लोजेज ऑन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वहां पे वही है कि दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम आपका रैशनल नंबर है, तो दैट क्लोजेज ऑन मल्टीप्लिकेशन आल्सो। और जो मैं बताया इसमें जीरो वाला एंगल ये है कि अगर आप उसका आउट मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो भी आउटकम आपका रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि वो जीरो हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, एंड जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट डिवीजन जो है वो क्लोज नहीं होता है रैशनल नंबर के लिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनिटी, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ रैशनल नंबर। तो इसीलिए 90% केसेस में होगा, लेकिन जैसे डिवीजन बाय जीरो वाला केस आता है तो नहीं होता है, तो दैट्स एन एक्सेप्शन। इसलिए उसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि भाई आपका डिवीजन इज डजंट क्लोज फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? वीर, आप बताइए बेटा, आप तो 7th ग्रेड में हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप समझ पा रहे हो? आपका आवाज ब्रेक कर रहा था, आप अगर समझ पा रहे हो तो सिर्फ थम्स अप से दिखा देंगे तो समझ जाऊंगा मैं, नहीं तो बताइएगा फिर। मतलब हाँ ठीक है, फिर ठीक है। आदर्श और दिव्यांश, आप लोग को दिक्कत नहीं है? ओके, ठीक है, मतलब इसलिए पूछ रहा हूं ताकि एक को भी द सेम स्पीड। नाउ तो हमने सीखा क्लोजर के बारे में। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। टेटिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता। ठीक है, तो इसका 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 मतलब ये होता है, इसको देखिए 3 + 7, 7 + 3। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन सेम ही है, हमने सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे कर दिया। डज द आउटकम चेंज फॉर मी? नो, इट डज नॉट। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड क्रम विनिमेयता या कम्यूटेटिविटी, मतलब वेयर द नंबर्स आर कम्यूटिंग अमंग ईच अदर, मतलब आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, इफ यू लुक एट दिस 1/7, लेट्स से ये आपका नेगेटिव है, +2/19। अब इसको ऐसे लिखिए, या 2/19 प्लस -1/7 लिखिए, 7 लिखिए। ऑपरेशन करेंगे, आगे पीछे होने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एंड हियर वी आर टॉकिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टू नंबर्स। ओके, एनी टू रैशनल नंबर्स, उनको अगर आप उनके साथ आप एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर आगे पीछे कर देंगे, जंबल अप कर देंगे, डज द आंसर चेंज? नो, आंसर इज नो। तो यहाँ पे बेसिकली -1/7 और 2/19 है आपका, और इसको 2/19 -1/7। ठीक है, अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप एडिशन करते हो और इसका इसका एडिशन करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली कम्यूटेटिविटी के केस में, कम्यूटेटिविटी जो है इसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विथ एडिशन, मतलब जो उसका आउटकम होगा वो चेंज नहीं होता है, उनको सिर्फ आगे पीछे ये उनको जंबल अप करने पे। सेम वे अगर आपने तो ये आपका जो है एडिशन के केस में कम्यूटेटिव है। अभी देखिए, अगर माइनस कर देंगे क्या अंतर पड़ता है, एक में से दूसरे को घटाना ही तो है। आउटकम हो सकता है कि 3 - 4 और 4 - 3,
में डिफरेंस है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रैशनल नंबर में तो इट्स ऑलवेज बोथ द ऑप्शंस आर देयर, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है रैशनल नंबर, तो मतलब हमारा नंबर टाइप चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज कम्यूटेटिव। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ कि रैशनल नंबर, सॉरी, यहाँ जो इस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि if you do an operation with one input type, is my output of the same type, not the value, ठीक है? तो आप दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करोगे, आउटकम रैशनल नंबर ही होगा, भले आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो रैशनल नंबर को माइनस करोगे, जंबल अप करोगे, 3 - 4 कर दो या 4 - 3 कर दो, मतलब आई एम सेइंग इंटीजर्स, बट you have to assume I'm talking about rational numbers, okay? तो दो नंबर को अगर माइनस कर दोगे आगे पीछे करने के बाद में भी, तो भी जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1/7 और 2/19, आगे पीछे करने के बाद भी आउटकम जो है दोनों ही केस में रैशनल नंबर ही होगा। तो मतलब रैशनल नंबर प्लस माइनस आउटकम इज ऑलवेज रैशनल नंबर, नो मैटर हाउ यू अरेंज देम, मतलब किसको पहले किसको बाद में करते हैं, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, इसको इसको लेट्स लुक एट इट डिफरेंटली। इफ यू, सॉरी, हाँ, एक गड़बड़ हुई। तो जिस देखिए यहाँ पे जो हम क्लोजर की बात करते हैं, क्लोजर के केस में वी लुक एट द टाइप, बाकी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये तीनों के केस में हम टाइप और वैल्यू दोनों देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। तो अगर क्लोजर केस में क्या हमने कहा कि यू टेक टू नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स, do any operation and look at what is the value. अगर इनका टाइप, अगर आपने रैशनल नंबर लिया, आउटकम भी रैशनल नंबर आता है, देन वी से वी क्लोज ऑन दैट प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ना घटाना और गुणा करना वाज क्लोजिंग विथ रैशनल नंबर्स, बट डिवीजन के केस में नहीं होता है, बिकॉज इफ यू डिवाइड बाय 0 it becomes infinity and that is not of the same type as rational number. तो क्लोजर या समरूप प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर केस में सिर्फ जोड़ने घटाने और गुणा करने, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन केस में होता है। इट डजंट क्लोज ऑन डिवीजन बिकॉज द नंबर टाइप चेंजेस, but the other three properties, associativity, commutativity and distributivity, that we'll talk about, will not only talk about the type but we'll also talk about the result. तो मतलब 4 + 7 और 7 + 4, यहाँ पे मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, चलिए आप इसको रैशनल नंबर मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर। हाँ, तो एडिशन करते वक्त में आउटकम जो है 11 आया, इसमें भी 11 आया, या 11/1 बोलिए रैशनल नंबर बनाने के लिए, इट इज ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कम्यूटिविटी के केस में या क्रम विनिमयता के केस में आप देखना है आपको क्या, कि आपका जो इनपुट टाइप है और आउटपुट टाइप सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो अब देखिए ऐसे -1/7 2/19 की बात कर रहे थे, इसको प्लस करेंगे आगे पीछे करके तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? दोनों का वैल्यू जो भी आएगा चेंज करने पे अंतर नहीं पड़ता है, बट द टाइम यू डू माइनस, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं आप और ऐसा कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्लस, और देखेंगे वैल्यू चेंज हो जाता है। तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, मतलब टाइप भले चेंज नहीं होता है लेकिन वैल्यू चेंज हो जाता है। तो
अगेन आई रिपीट, क्लोजर के केस में वी ओनली लुक एट द टाइप, कि दो रैशनल नंबर का के बीच में ऑपरेशन किया, आउटकम रैशनल नंबर बना, सेम टाइप है, कोई दिक्कत नहीं, दिस क्लोजेस ऑन दिस प्रॉपर्टी. Now we are going one level deeper where we are not only looking at the type, but we are looking at the value also. So commutativity या क्रम विनिमयता, associativity या सहचारिता, या फिर distributivity या वितरकता. ये तीनों केस में हम देखेंगे कि ऑपरेशन करने के बाद में टाइप भी सेम है या नहीं, और वैल्यू भी सेम है कि नहीं. तो दिस बिकम्स क्लियर कि आप अगर कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं, मैं सिर्फ सेम नंबर को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको रिलेट करना इजी हो. अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं उस केस में नंबर मतलब 3 minus 4 और 4 minus 3 is always different, right? Same thing applies for rational numbers also. तो ये वैल्यू चेंज हो जाता है, टाइप भले सेम रहता है, तो इसलिए बोलते हैं कि rational numbers are not commutative for subtraction. क्योंकि आप उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना वर्सेस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना सेम बात नहीं है. सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है. सेम थिंग अप्लाइज फॉर मल्टीप्लीकेशन. नाउ लुक एट दिस 1/7 मल्टीप्लाई माइनस था ना, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 2/19, या इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे आप इनटू -1/7, कोई अंतर नहीं पड़ता है. इट रिमेन्स अ रैशनल नंबर एंड द वैल्यू आल्सो डजंट चेंज. लेकिन यही काम जैसे आप इसको डिवीजन कर देंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा. मतलब 2/5 वर्सेस 5/2, वैल्यू सेम नहीं है. सेम थिंग अप्लाइज हियर. तो मतलब वो इंटीजर्स के केस में वो वैलिड नहीं है, यहाँ पे तो वैलिड बिल्कुल भी नहीं है. आर यू गाइस विथ मी? तो इसका समरी ये है कि अगर हम कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं या क्रम विनिमयता, मतलब नंबर आगे पीछे करने के क्रम में अगर हम बात करेंगे, तो एडिशन इज ओके, सब्ट्रैक्शन इज नॉट ओके, क्योंकि वैल्यू बदल जाता है, टाइप भले ही सेम रहे. मल्टीप्लीकेशन इज ओके, आगे पीछे करने से 1 -1 into 2 करें या 2 into -1 करें, वैल्यू चेंज नहीं होता है. रैशनल नंबर केस में डिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली चेंजेस, क्योंकि 5/2 वर्सेस 2/5 वैल्यू अलग अलग होता है, और वैल्यू अलग हुआ तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव. दैट इज व्हाट विल से. और दिस इज नॉट, यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है फॉर रैशनल नंबर्स. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, तो आदर्श का एग्जाम है इसलिए आदर्श ड्रॉप कर गया शायद से, और वीर का शायद पता नहीं नेटवर्क इशू कुछ दिख रहा है कल से. तो एनीवेज, दिव्यांश यू कैन हियर मी ओके राइट? बाकी लोग बच्चे बाद में देख लेंगे. Yes, sir. ओके. तो अभी तक हमने दो चीज पढ़ा, दो चीज सीखा प्रॉपर्टीज के बारे में. एक था क्लोजर. क्लोजर में हम देखते हैं कि दो इनपुट टाइप या दो इनपुट टाइप्स ऑफ नंबर रिजल्ट्स इनटू सेम आउटपुट टाइप ऑफ नंबर अगेंस्ट द फोर ऑपरेशंस. मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में this closes on these operations. Okay, rational numbers closes on these operations. मतलब कि आपका जो अगर रैशनल नंबर यूज करते हैं इनपुट में, तो आउटकम भी रैशनल नंबर ही होता है. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो इट्स फाइन, बट डिवीजन में नहीं होता, क्योंकि इट्स अ जेनेरिक फॉर्म. मतलब कोई भी नंबर आपको लेना हो तो कोई नंबर के केस में वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि जैसे आपने 0 से डिवाइड किया वो इन्फिनिटी हो जाता है. दैट्स नॉट रैशनल नंबर. तो क्लोजर के लिए ये तीन था. अभी एक टेबल में दिखाऊंगा तो आई थिंक दैट विल मेक इट मोर क्लियर. मतलब इट विल मेक इट इजी फॉर यू टू गेट टू रिमेंबर. सेकेंड चीज हमने सीखा, दैट इज कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमयता. उसमें देखा कि नंबर्स को आगे पीछे करने पर यहाँ पर एडिशन के केस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन केस में कोई अंतर नहीं पड़ता. तो Excuse me, sir.
हाँ Sir, बेटा, हाँ बोलिए। sir, I have to go my tuition classes, so I have या to leave it. गोयर बेटा, आप बाद में ये वीडियो देख लेना, आपका रिवीजन करने के लिए है ना। Okay, sir. चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. ओके, चलिए। तो दूसरा हमने सीखा कम्यूटेटिविटी के बारे में, जहां पे कि वी वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ वी वर डीलिंग विथ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, और वी वर ट्राइंग टू डिराइव कि क्या होता है, अंतर पड़ता है इस पे। तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि इनको आप आगे पीछे कर देंगे नंबर्स को, तो उसमें देखना है आपको कि आपका आंसर जो है रिजल्ट, डज इट रिमेन द सेम टाइप एंड द वैल्यू। तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, मतलब द रिजल्ट आल्सो डजंट चेंज, द टाइप आल्सो डजंट चेंज। लेकिन अगर आप माइनस कर रहे होते हैं तो, या डिवीजन कर रहे होते हैं, तो उसका टाइप तो सेम रहता है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन से कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव with subtraction and division. However, they are commutative in case of addition and multiplication. अभी तक कोई दिक्कत नहीं? दिव्यांश और वीर, अगर दिक्कत तो बता दी भाई। I should not be assuming. Okay, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, यह हिंदी में बोलते हैं सहचारिता। इसका एग्जांपल है ऐसा, ये एग्जांपल देखिए, दिस एसोसिएटिविटी कि किसको किसके साथ एसोसिएट करना है ना। अब देखेंगे इसमें, इफ लेट्स से आपके पास यहाँ पे अभी जनरली तीन, एटलीस्ट तीन, you'll have at least three rational numbers। मान लीजिए आपका ये है ऐसा सिनेरियो, मतलब बेसिकली तीन नंबर है, थ्री, you have three rational numbers, let's say 1/2, 2/3 and 3/4। अब किसको किससे एसोसिएट करना है, तो अभी देखेंगे, अगर आप इफ यू डू नो, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आया था आपका, जो आपका कम्यूटेटिविटी में आता है। ठीक है, कि अगर प्लस कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसको इसके साथ प्लस कर रहे हैं या इसको इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, द सेम। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाता है, राइट। जैसे जैसे सी, लेट्स लुक एट दिस वे फर्स्ट। बच्चे लोग, आप लोग म्यूट कर दीजिए, आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा कैच करने में दिक्कत होगा। आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक, नहीं तो मिस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसको इसके साथ ऐड कीजिए या इसको इसके साथ ऐड कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इट्स ऑल फाइन। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो किसको किससे एसोसिएट करके कर, देखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग बहुत लेट से आए हैं, म्यूट पे रहिए और पहले का वीडियो देखिएगा, ठीक है, नहीं तो अभी हम सॉरी रिवाइज कर। सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सॉरी सर, पता नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा ना, तो तब समझ में आएगा, नहीं तो अभी अचानक से बीच से हम पढ़ाना शुरू, अभी सुनना पड़ेगा खाली, बाकी वीडियो देखेंगे तो फिर होगा, बाद में पूछिएगा कुछ अगर छूट रहा है तो। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें लेट्स लुक एट दिस वे। तो ठीक है,
अब इसको इसके साथ एसोसिएट करके, अब ऐसा ऐसा सोचिए, ठीक है, इस किसको किसके एसोसिएट करना है, 1/2 प्लस 2/3। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ना कि एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ यू लेट मी ट्राई मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू। चलिए ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो जब तक एडिशन की बात कर रहे हैं आप, ये ब्रैकेट में से इसको ऐड करके इसके साथ ऐड कर रहे हैं, या इसको इसको ऐड करके, सर आप म्यूट हो गए हैं। धन्यवाद। अभी सुनाई पड़ रहा है? यस सर। ओके, अब आप म्यूट हो जाइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएटिविटी, राइट, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लेट्स लुक एट दिस, ऐसा देखिए, ठीक है। तो अगर इसका और इसका वैल्यू सेम आता है तो दिस इज एसोसिएटिव, और टाइप भी सेम रहता है। तो इसको अगर आप रैशनल नंबर के टर्म्स में सोचेंगे, अगर रैशनल नंबर का केस सोचेंगे, अगर अभी जस्ट हम उसको रैशनल नंबर बना दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाए। एडिशन केस में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कौन सा ब्रैकेट के अंदर है कौन सा ब्रैकेट के बाहर है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, टाइप भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप ये हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं अभी? हेलो? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, सर सुन रहे हैं। ठीक है, नया मेरा नेटवर्क का गड़बड़ाया था। ओके, की प्रॉपर्टी का मतलब होता है, या इसको सहचारिता बोलेंगे। देखिए मेरा नेटवर्क थोड़ा अभी भी गड़बड़, नॉट एबल टू यूज द व्हाइट बोर्ड। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा ब्रैकेट हो, या इन दोनों फॉर मल्टीप्लीकेशन आल्सो, अगर अंदर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर डीलिंग विथ ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेशन, एक ही तरह का ऑपरेशन है तो। लेकिन आप ऐसे देखिए, कुत्ता आ गया सर, कुत्ता आ गया। अब अभी म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट पर ही बेटा, ऐसे डिस्टर्ब करेंगे अगर तो पढ़ाई आप भी नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो now let's look at देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। कुछ भी करता है। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में तो क्या होता है कि सारे प्रॉपर्टीज में यू ऑलवेज से कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर नहीं होगा, क्योंकि जहां पे जीरो से आप डिवाइड करते हैं ना, वहां पे वो नंबर टाइप बदल जाता है। ठीक है, तो दैट यू कैन सेफली अज्यूम कि जीरो आप कहीं पे भी लाएंगे, मतलब डिवीजन जब भी आप कर रहे होंगे तो जीरो रहने की वजह से वो इन्फिनिटी हो जाता है, राइट, अनंत हो जाता है, तो वो दैट विल नॉट वर्क, तो आप उसको रूल आउट कर देंगे। तो आपका, हमने कम्यूटेटिविटी की बात की, एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं अभी। तो एसोसिएटिविटी में देखा कि जो ऑर्डर चेंज करने पर प्लस और मल्टीप्लीकेशन मतलब जोड़ना और गुना करना सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करने पे जीरो जैसे डिवाइड करते हैं आप इन्फिनिटी हो जाता है, दैट इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन में अगर आप इनको माइनस कर रहे हैं, इनफैक्ट एक्चुअली सब्ट्रैक्शन में ओके, हाँ, गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे देखिए, सब्सट्रैक्शन भी जो एसोसिएटिव नहीं होता है, जो घटाना होता है ना, वो सहचारिता के नियम को नहीं मानता है। अब देखिए ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, चलिए आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, या अगले क्लास में इस पे हम लोग बात करेंगे। एसोसिएटिविटी जो है, या सहचारिता का नियम जो है, हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। सो वी कैन से कि रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. आप लोग बच्चा लोग म्यूट पे रहिए, आप लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको देखना पड़ेगा वीडियो, नहीं तो समझेंगे नहीं, है ना, और बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं, उन लोगों का पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखिए हमने देखा कि लेट मी डू अ क्विक रिकैप, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो पहले तो हमने देखा कि भाई रैशनल नंबर्स होता क्या है। रैशनल नंबर्स मतलब वो सभी फ्रैक्शंस, ये प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद हमने देखा रैशनल नंबर का की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हमने सीखा क्लोजर के बारे में। क्लोजर होता है जहाँ पे कि आपका दो रैशनल नंबर के साथ में कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग देना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी केस में हम देखते हैं कि दो इनपुट टाइप से हमारा आउटपुट टाइप सेम अगर रहता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। तो मतलब हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन केस में क्लोजर अप्लाई होता है, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स को के साथ ही ऑपरेशन करने पे आउटकम भी आपका रैशनल नंबर ही होता है, तो दैट अप्लाइज। बट डिवीजन केस में नहीं होता, बिकॉज देयर कुड बी अ सिनेरियो जहाँ पे कि जीरो रहेगा और जीरो रखने पे वो इन्फिनिटी हो जाता है डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में हो जाता है वो केस। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लोजर डजंट अप्लाई, या फिर रैशनल नंबर्स डोंट क्लोज ऑन डिवीजन। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी वो था। दूसरा प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमयता। तो उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, अगर मतलब ऐसा भी करेंगे, अगर सॉरी तो अगर उनको हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं अगर, तो उससे एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में कोई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में कोई दिक्कत नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में अंतर पड़ता है क्योंकि इफ यू मतलब 3 - 4
वर्सेस 4 माइनस 3 डिफरेंट होता है। तो इसीलिए ये दिस डजंट अप्लाई इन केस ऑफ commutativity. मतलब commutativity doesn't hold, I mean doesn't remain valid for subtraction and division. एडिशन मल्टीप्लिकेशन केस में अप्लाई होता है फॉर रैशनल नंबर्स। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग सीख रहे थे अभी, एसोसिएटिविटी, जहां पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग थ्री रैशनल नंबर्स, उनका ऑर्डर चेंज करके ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर। तो डज दिस अप्लाई? ठीक है, तो ये हमने अभी ठीक से नहीं किया, एसोसिएटिविटी हमने ठीक से नहीं किया इस क्लास में, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग के लिए यही होमवर्क है, आप लोग एसोसिएटिविटी का पता करेंगे कि वो डज इट अप्लाई फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ मैंने बताया कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो आप लोग इसको you will refer to your notebook and let me know in the next class, and then we will discuss about that and kind of recap. Okay, एक last property होता है that we wanted to learn was distributivity. आप लोग बेटा म्यूट पे रहिए भाई, आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे और लोग को तो अच्छा बात नहीं ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है? ऐसा, ठीक है, तो यानी ब्रैकेट को ब्रेक करके, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, मतलब इसको इसको यू डोंट हैव टू और एक काम करेंगे इस पे, विल डू सम होमवर्क आल्सो ऑन दिस वन। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये व्हेन यू ब्रेक दिस ब्रैकेट और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डज इट वर्क इफेक्टिवली फॉर रैशनल नंबर्स। तो मान लिया जाए अगर इसकी जगह पे आप ए की जगह पे मान लिया जाए कि आपने ऐसा नंबर रखा, बी की जगह पे आपने रखा 2/9 और सी की जगह पे रखा आपने, ठीक है। तो इसका जो अगर इसको ब्रेक करने के बाद में वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है ये दिस एक्चुअली अप्लाइज फॉर ऑल द 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सबके लिए, ठीक है। बट in a more mathematical terms you can remember that this just depicts कि कैसे इसका ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। this is the property that we will use in all the mathematical operations, जो हम बोलते हैं कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको इसको ब्रेक करके। सो दिस जस्ट डिपिक्ट्स दिस प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे हमको ये चेक नहीं करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई होता है कि नहीं, ये दिस इज जस्ट टू शो कि ये दिस वर्क्स। ओके, लेकिन आप लोग का होमवर्क वही रहेगा, एसोसिएटिविटी का जो है सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्यों अप्लाई नहीं होता है, इसको हम लोग आप बताएंगे और मैं करके दिखाऊंगा कि इसको हाउ डज इट वर्क और क्यों ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और हम लोग अगली क्लास में उसका कुछ वी विल आल्सो डू सम एक्सरसाइज आल्सो, क्योंकि अभी देखेंगे ना जो भी पढ़ाई होगी हर एक का एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा होमवर्क भी रहेगा। तो आप लोग का होमवर्क यही है कि एसोसिएटिविटी का सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए डज इट अप्लाई फॉर रैशनल नंबर्स और नॉट, ये आप चेक करके आप रेडी करके आएंगे और बाकी मैं होमवर्क तो कराऊंगा ही। मतलब आई विल एनीवे शो इट टू यू। आज मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो इसीलिए वी कुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस वन। हम लोग शुरू में थोड़ा क्लोजर पे उस पर टाइम लगा लिए तो इसलिए हम लोग इस पर नहीं आ सके। बट अभी हमारा पैटर्न ये रहेगा, हर एक क्लास हर एक चैप्टर जो हम पढ़ाई करेंगे उसके साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे अगले क्लास में, इफ यू कैन नॉट डू इन द सेम क्लास, ठीक है। तो उससे थोड़ा रिवीजन भी होगा, कहीं पे उस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है। तो लेट मी डू अ क्विक रिकैप अगेन। तो आज हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर था विच इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और इसको
अगर ठीक है, इसको अगर समझेंगे तो ये कुछ नहीं है, जो हम जो भिन्न समझते हैं, जो फ्रैक्शन समझते हैं, वही है, उसी का दोनों टाइप, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप। तो अगर आप फ्रैक्शन से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे या भिन्न, जिसको अगर इसको रैशनल नंबर बोलेंगे या परिमेय संख्या बोलेंगे तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। दैट इज व्हाट इज परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। तो आज हमने सीखा प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लोजर मतलब अगर आप दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें, गुना करें, घटाएं, भाग दें, तो उसका आउटकम अगर सेम परिमेय संख्या आता है तो हम बोलते हैं कि इट क्लोजेस ऑन दिस प्रॉपर्टी, या ये समवृत्त है। तो हमने देखा कि जोड़, घटाव और गुना ये समवृत्त होता है, या इट क्लोजेस ऑन दीज ऑपरेशंस विथ रैशनल नंबर्स। लेकिन डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड करते वक्त में अगर आपका जीरो वाला केस आता है तो इट बिकम्स इन्फिनिटी। इसीलिए हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स डू नॉट क्लोज ऑन डिवीजन, ठीक है, या क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट अप्लाई फॉर डिवीजन फॉर रैशनल नंबर्स। दूसरा हमने सीखा कम्यूटिविटी या क्रम विनिमयता, जहां पे हमने देखा कि नंबर्स को आगे पीछे करने पर, मतलब ए और बी अगर दो नंबर है, उसको अगर हम आगे पीछे कर दें तो एडिशन के केस में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी नहीं बदलता, टाइप भी नहीं बदलता। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के केस में क्या होता है कि वैल्यू बदल जाता है, 3 - 4 वर्सेस 4 - 3, तो वैल्यू बदल जाता है। तो हम बोलते हैं कि कम्यूटिविटी जो है नेगेटिव के केस में काम नहीं करता है। मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर नहीं है, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आपका आउटकम सेम रहता, आउटपुट सेम रहता है और टाइप भी सेम रहता है। तो हम बोलते हैं कि जोड़ और गुना जो है कम्यूटिविटी या क्रम विनिमयता के नियम को अप्लाई करता है इन केस ऑफ रैशनल नंबर। माइनस और डिवीजन नहीं करता क्योंकि इसका वैल्यू बदल जाता है। सेम वे तीसरा प्रॉपर्टी हमने सीखा वो था एसोसिएटिविटी, जो कि हम पूरा भी नहीं किए हैं, थोड़ा थोड़ा ही हमने किया। एसोसिएटिविटी या सहचारिता, उसके केस में इसका एग्जांपल को समझने के लिए ऐसे है, मतलब यहाँ पे आप जो नंबर्स है आपके साथ में, जो जो रैशनल नंबर्स हैं या परिमेय संख्या है, उनको अगर आप ब्रैकेट के अंदर रखते हैं या ब्रैकेट के बाहर रखते हैं तो उसका वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है। तो एडिशन के केस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, द आउटकम रिमेन्स द सेम। तो हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव, मतलब परिमेय संख्याएं जो है सहचारिता के नियम को मानती है एडिशन के केस में। सेम थिंग अप्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में वैलिड है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन केस में वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है ये आप लोग भी पढ़ के आएंगे, ये आप जानते होंगे तो बताएंगे, नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो कि विच इज, जहां पे हमको कुछ प्रूव नहीं करना है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये ब्रेक करके जब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी था जो हमने सीखा आज। And this works for rational numbers also, मतलब it's just opening of bracket। ये हम लोग इक्वेशन करते वक्त हमने बहुत बार किया है पहले भी, यहाँ पे दिस इज जस्ट एक्सप्लेन इन थ्योरेटिकल टर्म्स। तो आज इतना ही था। कल हम लोग जो है वी विल नॉट कल, हम लोग अगले क्लास में वी विल क्विकली टॉक अबाउट कि हमने क्या सीखा इसके बारे में इस चैप्टर में, और उसका कुछ एग्जांपल्स लेके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो या आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और कुछ डाउट है तो आप अगले क्लास में पूछ लेंगे, बिकॉज वी आर रनिंग लिटिल लेट टुडे। और बाकी हम लोग रिवीजन करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाय सर। बाय। जो लोग का इंग्लिश क्लास है